हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएससी मैथमेटिक्स टर्म 1 पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट 1। यहाँ पर सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई गई है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स की। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। लेट एल बी अ rectifiable are defined by z is equal to z of t, x of t plus I y of t, and let f of z be a function, a complex variable z which has a definite value of each point of a rectifiable arc L. Let P be any arbitrary partition. P is equal to A is equal to T0, T1 to Tn of closed interval AB. We divide the Zn which corresponding to the value A is equal to T0 less than T1 less than Tn is equal to B of the parameter T, and from this sum is equal to k is equal to 1 to n f of zk minus zk minus 1, where zk is equal to ztk and zk is equal to z of alpha k. नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको शो कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर ए बी आर द real numbers is called complex number. If z is equal to x plus iy, then z is called a complex number. The real number x and y are called real and imaginary part of z. It implies real image of z is equal to x and imaginary image of z is equal to y. If x is equal to 0, then the z is equal to imaginary part of z, then z is called pure imaginary number. Two complex numbers z1 and z2 are equal if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कॉशीज थ्योरम. लेट f of z be a regular function and f dash z be a continuous and each point which in on a closed counter c, then limit c f of z dz is equal to 0. इस तरह से यहाँ पर हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है. लेट डी डिनोट द क्लोज डोमेन कंसिस्टिंग of all points within on C. Assume that f of z is equal to u xy plus I v xy. Now fc fz dz is equal to fc u xy dz plus I fc. इंटीग्रल है ये, इंटीग्रल c v xy dz. इंटीग्रल c f of z dz is equal to इंटीग्रल c u dx minus v dy plus I इंटीग्रल c is equal to v dx u dy. इक्वेशन 1. इस तरह से अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम बाय कॉशीज Riemann equation. Since f dash z is continuous in D, all the four partial derivatives ux, vx, uy, vy exist are continuous in D. Thus, condition of Green theorem are satisfied from equation 1. So, integral c u dx minus v dy is equal to double integration d minus dv by dx plus du by dy dx dy. इसका इंटीग्रल करके हमें इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन नंबर 2. नाउ बाय कॉशीज रीमैन इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. तो हम इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा इस तरह से आंसर आता है इंटीग्रल जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0. यही हमें प्रूफ करना था. अब हम सॉल्व करेंगे कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम. ये 2010 में आ चुकी है और कई बार आ चुकी है. इसमें हमें प्रूफ करना है लेट एफ जेड बी एनालिटिक विथ इन एंड ऑन अ क्लोज काउंटर सी एंड जेड जीरो बी एनी पॉइंट विथ इन सी, देन एफ ऑफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड. प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम. प्रूफ में सबसे पहले हमने एक क्लोज इंटरवल बनाया है. वी डिस्क्राइब अ सर्कल गामा डिफाइंड बाय equation z minus z0 is equal to p, where p is less than d and d is distance from z0 to the nearest point on c. z0 से लेके जो भी नियरेस्ट पॉइंट है c पर उसके बीच का डिस्टेंस है. कंसिडर द फंक्शन. हमने यहाँ फंक्शन कंसिडर किया फाई z इज इक्वल टू एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो. दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द डबल connected region bounded by c and gamma. Hence by extension of Cauchy's theorem we have c phi z dz is equal to gamma phi z dz. It implies 1/2 pi I c f z z minus z0 dz is equal to 1/2 pi I gamma f z z minus z0 dz from above equation.
where C and gamma are both in the positive sense. Since f of z is continuous at z0 for a given epsilon greater than 0, there exists a del greater than 0 such that fz minus fz0 less than epsilon by definition of continuity. Wherever z minus z0 is less than del. Now अब हम इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे 1/2 पाई एफ जेड जेड माइनस जेड ज़ीरो गामा के साथ हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड ज़ीरो, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि एफ जेड जो है एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, वैल्यू पुट करिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, ये हमारी इक्वेशन 3 होगी. राइटिंग z माइनस जेड ज़ीरो इज इक्वल टू रो ई टू दी पावर आई थीटा डी जेड इज इक्वल टू रो आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा. यहाँ z का हमने डिफ्रेंशिएशन किया है. तो हमें मिल रहा है 1/2 पाई आई गामा एफ जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड ज़ीरो डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड ज़ीरो 2 पाई आई रो टू 2 पाई रो आई ई आई थीटा रो ई आई थीटा डी थीटा. यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस कैंसिल हो रही है, हमारे पास बच रहा है डी थीटा. लिमिट 0 से पाई है, जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 पाई, और यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होकर हमें फाइनली मिल रहा है एफ जेड ज़ीरो. हैंस इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 में चेंजेस होगा 1/2 पाई गामा एफ जेड जेड माइनस जेड ज़ीरो डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 3 में हम चेंजेस करेंगे 1/2 पाई गामा एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो जेड माइनस जेड ज़ीरो डी जेड प्लस जो हमारी यहाँ इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली एफ जेड ज़ीरो. इक्वेशन 3 में ये जो इक्वेशन थी उसके प्लेस पे हमने रख दिया एफ जेड ज़ीरो. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, एफ जेड ज़ीरो को प्लस से हम माइनस में लेकर आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बनी नंबर 4. Since we may choose as small as we take rho less than s, thus the inequality 2 is satisfied for all the point on gamma. So हम मॉड लेंगे दोनों साइड का. मॉड लेने के बाद हमने यहाँ पर मॉड लिया. अब देखिए ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसे हम रिमूव करेंगे 1/2 पाई हमारे पास बच रहा है, और ये पूरा कैंसिल हो रहा है. आई से आई कैंसिल हो गया, रो ई आई थीटा से रो ई आई थीटा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो डी थीटा. जब इसका हम इंटीग्रल निकालेंगे हमें मिल रहा है एप्सिलॉन डी थीटा बाय इक्वेशन स्टार. अब हमने इक्वेशन स्टार से यहाँ पे पुट किया 1/2 पाई, और यहाँ वैल्यू जो थी उसको रखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, हमें वैल्यू मिली एप्सिलॉन. दस दिस इक्वेशन इज लेस देन एप्सिलॉन. इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 4 और 5 को हम कंबाइन करके देखते हैं, तो ये पूरी इक्वेशन लेस देन है एप्सिलॉन. वी नाउ ऑब्जर्व दैट एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी एंड लेफ्ट बॉन्ड साइड इज डिपेंडेंट ऑन इट, है ना. आर्बिट्ररी और लेफ्ट साइड इस पर डिपेंडेंट है, तो ये इक्वेशन पूरी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी. 0 के इक्वल करने के बाद माइनस एफ जेड ज़ीरो दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा. 0 में एफ जेड ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमें एफ जेड ज़ीरो मिलेगा. 0 में हमने माइनस ये साइड चेंज किया, प्लस में गया, 0 प्लस एफ जेड ज़ीरो. फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 वे ऑब्टेन. इक्वेशन 1 और 6 को हम कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एफ जेड ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस जेड ज़ीरो डी जेड. इस तरह से यहाँ पे आपको ये थ्योरम कंप्लीट करनी है. अब हम इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेशन. हायर ऑर्डर डेरिवेशन के लिए फार्मूला किस तरह से हमें प्रूफ करना है. सबसे पहले हम यहाँ थ्योरम देखते हैं. लेट एफ जेड बी अ एनालिटिक विद इन एंड ऑन द बाउंड्री सी एंड अ सिंपली कनेक्टेड रीजन डी एंड लेट ए बी एनी पॉइंट विद सी. देन डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर आर एनालिटिक एंड गिवन बाय एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एंड 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1. इसके प्रूफ में आपको सारी इक्वेशंस अच्छे से दिखाई दे रही हैं. आपको यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करना है. फर्स्ट वी नो दैट एफ डैश जेड इज एनालिटिक ऑन सी. टू प्रूव दैट कॉची फार्मूला लगाया एफ डैश ए, और यहाँ पे हमने वी हैव बाय कॉशीज फार्मूला फॉर एफ डैश ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ लिखा है मैंने फॉर एन इज इक्वल टू 1. तो एफ डैश ए की इक्वेशन 1, फिर एफ डैश ए प्लस एच निकालेंगे, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी. अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इसे मैंने दिया है इक्वेशन स्टार. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हुए हम इस पूरी थ्योरम को सॉल्व करेंगे. मैं आपको सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखाती जा रही हूँ, आप उसको इस तरह से फॉलो करते जाइए.
इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना है, जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। धीरे धीरे आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत लग रही है वीडियो को पॉज करना है, आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम पूरे फॉर्मूले को। ये अभी कॉशी का इंटीग्रल हायर डेरिवेशन कॉशी का चल रहा है। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारी चीज़ें आपके सामने मैं शो कर रही हूँ, कहाँ पर हमने किस तरह से कौन सा वैल्यू पुट किया है, सब अच्छे से लिखा है नोट्स में। आप नोट्स ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लास्ट में एफ ऑफ जेड डी जेड लिखा है मैंने मॉड में। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अच्छे से उसे लिख सकते हैं। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एक और लाइन है यहाँ पे, वेयर एम इज़ द अपर बाउंड ऑफ एफ जेड इन डी। अब हैंस से हम स्टार्ट करेंगे। हैंस मॉड जेड टेंस टू 0, द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 ऑल्सो टेंस टू 0। तो राइट साइड इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे, हमें LHS RHS इस तरह से मिलेंगे। दस एफ डैश जेड हैज़ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट ए गिवन बाय द फॉर्मूला। इस तरह से हमें एफ डबल डैश ए मिलता है। देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। नाउ सपोज दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू m। अब n इज इक्वल टू m के लिए इसका थर्ड पार्ट हम शो करेंगे। ये हम n इज इक्वल टू m के लिए शो कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से लास्ट में हम लिखेंगे दिस शोज दैट द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। हैंस द थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। और इस तरह से हम लिखेंगे ऑल्सो वी सी फ्रॉम द रिजल्ट दिस एफ एन ए इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। दिस implies that derivatives of f z of all orders are analytic if f of z is analytic। इस तरह से आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है।